Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying chapter 2 polynomials. In our previous class we discussed that what is a zero of a polynomial and its geometrical meaning. Today we are going to examine the relationship between zeros and coefficients of a polynomial. Before we start this, let us quickly recall that the zero of a polynomial is that value of the variable say x which makes the value of the polynomial equal to 0, and geometrically it represents the point of intersection of the graph of the polynomial with the x-axis, and precisely the zero of a polynomial is its x coordinate. This we have discussed. Now today we are going to discuss the relationship between zeros and coefficients of a polynomial. We begin with a linear polynomial first. We know a linear polynomial is given by the general form ax plus b, a not equal to 0. Now we want to find its zero. तो किसी भी polynomial का zero कैसे find करेंगे? उसको 0 के equal रखने पर. We equate the polynomial to 0 to find its zero. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि zero of a polynomial क्या है? x की वो value जो पूरे polynomial को 0 कर दे, और इसीलिए हम polynomial को 0 के इक्वल रखने से x की वो वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इसको इक्वल टू 0 करने पर वी गेट ax इक्वल टू माइनस b, ट्रांसपोजिंग b टू RHS, एंड अगेन वी गेट x इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ट्रांसपोजिंग a टू RHS. In this way we get that value of variable x which is called its zero, which will make its value, the value of the polynomial equal to 0. ये वो zero of polynomial है, और इसलिए linear polynomial का zero हम represent करते हैं minus b upon a. और ये minus b क्या है? b is the constant term here. आप देखिए कि b के साथ कोई variable नहीं attached है. It's all alone. It's a constant term. And what is a? It is the coefficient of x. ये x का कोफिशिएंट है, x के साथ मल्टीप्लाइड है, और ये x का कोफिशिएंट है. तो आप देख रहे हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर कोफिशिएंट से किस तरह से रिलेटेड है इन केस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल. Similarly, is there any relationship between the zeros and coefficients in case of a quadratic polynomial or a cubic polynomial? This is what we are going to discuss in this segment. We begin with first factorization of a quadratic polynomial. पहले हम किसी भी quadratic polynomial का factorization कैसे करते हैं इसको recall कर लेते हैं. ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, but still we will recall it once so that you are familiar with it once again. A quadratic polynomial is factorized by splitting the middle term. ये आप जानते हैं. मिड टर्म यहाँ पर आप देखिए 3 टर्म्स हैं, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स मिल जाएंगे. तो वही हम पहले यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. फैक्टराइजेशन सीख लेंगे तो बाकी क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24. तो कैसे करते हैं ये फैक्टराइजेशन? फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर टर्म, स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल. सेकेंड टर्म इज एक्स टर्म, वेरिएबल इटसेल्फ इज देयर along with its coefficient, and the third term is a constant term. थर्ड टर्म में कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये एक कांस्टेंट टर्म है. अब यहाँ पर जो थर्ड टर्म है इसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. 24 के फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल हैं आप देखिए. 8 3 ज़ा 24 हो सकता है, 12 2 ज़ा इज अगेन 24, 6 4 ज़ा इज ऑल्सो 24, एंड इवन 24 1 ज़ा इज ऑल्सो 24. ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं 24 के. इन पेयर्स में से हम वो वाला पेयर सिलेक्ट करेंगे जिनका सम या डिफरेंस ये मिडिल टर्म हो. 10, यहाँ पर मिडिल टर्म है 10, और ऐसे कौन सा पेयर है जिनका सम 10 आए? आप देखिए 6 + 4 is 10, 6 × 4 is 24, and 6 + 4 is 10. Now we will break up or split this middle term. कैसे करेंगे? x² 24 सब कुछ सेम रिपीट करेंगे.
x की जगह भी x ही रखेंगे, सिर्फ इस 10 की जगह हम लिख देंगे 6 + 4। हमने क्या किया, एग्जैक्टली उसको रेप्लिकेट कर दिया, लेकिन इस 10 जो मिडिल टर्म है उसको हमने स्प्लिट कर दिया 6 + 4। और अब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो यू विल गेट इट x², 6 एंड x, इट विल गिव अस 6x। हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों नंबर्स को, और यहाँ पर 4 × x करेंगे, 4x + 24। Now we have 4 terms. Initially we were having 3 terms only. Now we have splitted the middle term and now we have 4 terms with us. अब यहाँ पर फर्स्ट 2 में हम कॉमन लेंगे और लास्ट 2 में हम कॉमन नंबर्स बाहर ले लेंगे। आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x is common, we take it outside and what will be inside? x 2 हैं, उनमें से एक x बाहर, एक x अंदर चला जाएगा, प्लस यहाँ पर x तो बाहर है, 6 अंदर रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर 4 और 24, x तो कॉमन नहीं है इन दोनों में। आप देखिए x 4x के पास तो है, लेकिन 24 के पास x नहीं है, तो x तो यहाँ पर कॉमन नहीं है। 4 और 24 दोनों ही 4 से डिविजिबल हैं और इसलिए 4 यहाँ पर कॉमन नंबर है। और ब्रैकेट में हम लेंगे x, क्योंकि 4 तो बाहर है और x अंदर, एंड 4 × 6 = 24। अब आप देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, x + 6, x + 6, और ये सेम ही आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं इसका मतलब हमने कोई ना कोई गलती की है, और सेम आ रहे हैं तो हम सही चल रहे हैं। नेक्स्ट, अब आप देखिए यहाँ पर 2 टर्म्स रह गई फिर से, क्योंकि प्लस और माइनस जो है यही तो स्पेस का काम करते हैं। तो ये तो हो गई एक टर्म और ये हो गई दूसरी टर्म। इन दोनों टर्म्स में कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, जरा सोचिए। यस, इट्स x + 6 विच इज कॉमन इन बोथ दीज टर्म्स। तो x + 6 को हम बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर यहाँ से x प्लस ये x + 6 तो बाहर है, यहाँ से 4, एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये लीनियर फैक्टर्स कहलाएंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्लियर? वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, वी हैव x² - 7x - 18। अगेन हम यहाँ पर किसके फैक्टर्स पहले करेंगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x² के साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स इट इज 1। कोफिशिएंट ऑफ x² is 1 in both these cases. Now first we will factorize this 18. 18 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम या डिफरेंस क्या होना चाहिए? Yes, it should be the middle term which is 7 here. So 18 can be written as 6 3s are 18, also 18 1s are 18 और 9 2s are 18। ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं 18 के। अब इसमें से हमें वो पेयर चाहिए जिनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 7 मिले। तो आप देखिए 6 + 3 is 9 and 6 - 3 is 3। हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अगेन 18 and 1 are not fulfilling our need. 9 and 2, 9 + 2 is 11, but 9 - 2 is 7. Yes, this is the pair that we were looking for. ये पेयर हमारे काम का है। अब आप देखिए यहाँ पर -18 है, तो अगर हम ये माइनस लगा दें तो -18 कब मिलेगा? जब इन दोनों नंबर्स में से 9 और 2 में से कोई भी एक नंबर माइनस का हो। और वो कौन सा नंबर माइनस लेना चाहिए? आप देखिए यहाँ -7 आ रहा है, तो बड़ा नंबर माइनस का होना चाहिए, तभी तो माइनस आ रहा है रिजल्ट में। तो बड़ा नंबर हम लेंगे माइनस और छोटा नंबर हम लेंगे प्लस का। तो अब आप इजीली इसको ब्रेकअप कर सकते हैं। यू कैन राइट x² और -7 को हम ब्रेक कर सकते हैं -9x + 2x - 18। देखिए आप, हमने मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया है 2 पार्ट्स में। देख रहे हैं आप? अब आप फिर से 4 टर्म्स हो गई हैं। देयर आर 4 टर्म्स, वी विल टेक कॉमन आउटसाइड इन द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड इन द लास्ट 2 टर्म्स। इन दोनों में फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन है, इट विल बी आउटसाइड, 1x आउटसाइड 1x इनसाइड, माइनस x इज आउटसाइड एंड 9 विल बी इनसाइड।
then here plus 2 and 18, they both are multiples of 2, so 2 will come outside and we will have x minus 2 9s are 18, so minus 9. Now x minus 9 is common here in both the cases. ये बाहर आ गया x minus 9 और सेकेंड फैक्टर हो गया x plus 2. देख रहे हैं आप? तो अगर आप ऐसे केसेस में जहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, आप डायरेक्टली भी फैक्टर्स लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए -9 और +2 ये मिल रहा था हमें कॉम्बिनेशन, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे x minus 9 और x plus 2 और देखिए वही आंसर आया है. तो यहाँ पर आपको साइन का भी ध्यान रखना होगा. इन केस वी हैव द सेंटर टर्म माइनस, दिस मीन्स द बिगर नंबर इज माइनस. अगर इसका रिवर्स होता, इस तरह से क्वेश्चन होता, मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 होता. सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन. अगेन माइनस 18 मीन्स 9 इंटू 2, लेकिन अब इन दोनों में से एक को माइनस करना पड़ेगा तभी माइनस 18 आएगा. लेकिन अब आप देखिए सेंटर में हमारा नंबर है +7 और +7 कब आएगा? जब बड़ा नंबर प्लस का हो. तो इसका मतलब इस बार छोटा नंबर माइनस का होगा, -2. और अब हम डायरेक्टली भी यहाँ पर फैक्टर्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है. तो हम लिख सकते हैं x plus 9 and x minus 2. जस्ट लुकिंग फ्रॉम हियर. समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे केसेस जहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यू कैन ऑलवेज राइट द फैक्टर्स डायरेक्टली ऑल्सो. बस यहाँ पर साइन का ध्यान रखिएगा कि कौन सा नंबर प्लस में होना चाहिए, कौन सा माइनस में. वी टेक वन मोर एग्जाम्पल. वी हैव दिस वन एंड नाउ इन दिस केस दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 1, इट इज 2 हियर. अब हम क्या करेंगे? जहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 नहीं है, कोई और नंबर है, ऐसे केस में हम इस फर्स्ट नंबर और कांस्टेंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into 6. व्हाट इज 2 into 6? इट्स 12. तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स ऐसे करेंगे कि हमें उनका सम या डिफरेंस मिड टर्म मिल जाए, जो कि है 8. तो 12 के फैक्टर्स करते हैं अभी हम. 12 के फैक्टर्स हो सकते हैं 3 4s, एक तो यही है 2 and 6, एंड इट कैन ऑल्सो बी 12 1s 12. ये फैक्टर्स पॉसिबल हैं 12 के लिए, और इनमें से हमें वो पेयर सर्च करना है जिनका सम या डिफरेंस 8 दे हमें. और आप देखिए 2 plus 6 इट इज़ 8. तो ये हमारे काम का पेयर है, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर एज इट इज़, +6 भी ऐसे ही लिख दीजिए, -8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 plus 6 and x along with it. So in this way we have splitted the middle term. 8 को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेकअप कर दिया है 2 plus 6. अब इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को. 2x स्क्वायर माइनस 2x. अब यहाँ माइनस और प्लस दोनों हैं, तो माइनस आएगा. माइनस प्लस इज -6x plus 6. Now again we are having 4 terms. We will take the common outside in the case of these first 2 terms and last 2 terms. इन दोनों में आप बताइए क्या कॉमन है? आप देखिए 2 भी है और x भी है, दोनों ही कॉमन है 2x. और अंदर हमें मिलेगा x 2 थे, एक बाहर एक अंदर, माइनस 2x पूरा ही बाहर चला गया. तो जब ये पूरा ही बाहर आ गया तो घर में अंदर कौन बैठेगा? 1. Remember, whenever the full number will be outside, in place of it we will be writing 1 because 2x 1s are 2x, इसलिए 1. फिर यहाँ माइनस. अब इन दोनों में देखिए आप क्या कॉमन नंबर है? इट्स 6, तो 6 को बाहर ले लेंगे और अंदर मिलेगा आपको x. अब यहाँ पर साइन का ध्यान रखिएगा. Whenever we have a minus in the center here, we will change this sign. जब भी यहाँ पर माइनस होगा तो हम ये वाला साइन चेंज करेंगे. ये प्लस है तो अभी हम इसको माइनस कर देंगे. अगर ये माइनस होता तो हम प्लस कर देते. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा अपने आप. जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस हमें प्लस ही देगा और प्लस ही है ऊपर,
इसलिए जब भी यहाँ माइनस हो, याद रखिएगा कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, इस प्लेस पे जब भी यहाँ माइनस हो तो ये वाला साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इस पर फोकस कीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं। अब 6 बाहर है तो इसकी जगह 1 आ गया। अब आप देखिए x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। और अब इसको भी बाहर कॉमन ले लेते हैं और सेकंड ब्रैकेट में मिलेगा हमें 2x माइनस 6। ठीक है, अब आप सेकंड ब्रैकेट में देखिए अभी भी 2 कॉमन है तो हम उसको भी बाहर ले सकते हैं। उसको बाहर लिखने पर यहाँ आगे लिखेंगे x माइनस 1 तो एज इट इज़ रहेगा और 2 बाहर आ गया है। सेकंड ब्रैकेट में हमें मिलेगा x, क्योंकि 2 बाहर है x अंदर, और 2 3 6, सो x माइनस 3। These are the factors of this polynomial p of x. ठीक है, now if we want to find the zeros of this polynomial, then how can we find it? हम अगर इसके zeros निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा? अभी हमने बात की थी किसी भी polynomial के zeros निकालने हो तो उसको 0 के इक्वल रख दीजिए, उसके zeros हमें मिल जाएंगे। तो let us write it equal to 0. Taking p of x equal to 0, what do we get? 2 into x minus 1 into x minus 3 equal to 0. Why we are equating to 0? Because we have to find the zeros of this polynomial. अब आप देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों में से कोई एक 0 हो, तभी तो 0 आएगा। 0 into 5 is 0 और 5 into 0 is also 0. अब इन दोनों में से कोई सा भी नंबर 0 हो सकता है। इट कैन बी x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0. दिस विल गिव अस x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3. These are the zeros of this polynomial, given polynomial. कैसे पता? आप देख लीजिए, एग्जामिन कर लीजिए। अगर हम 1 रखें यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में, हमारा पॉलिनोमियल अब क्या हो गया? 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। हमने इसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कर लिए। अब अगर हम x की जगह 1 रख दें तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 ऐसे ही, x माइनस 3 भी ऐसे ही। तो ये क्या बच गया? 2 इंटू 0 इंटू एक्स माइनस 3 और इसकी वैल्यू क्या हो गई? देखिए 0 हो गई। तो है ना ये x इक्वल टू 1 इस दिए हुए पॉलिनोमियल का 0। इसी तरह से अगर हम x की जगह 3 रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3, इट विल बी इक्वल टू 0 और 0 से मल्टीप्लाई करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसलिए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 ये दोनों ही इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। लेट अस रिमूव दिस फर्स्ट, देन वी विल कंटिन्यू। Now we want to find a relationship between the coefficients and the zeros. ये zeros हैं, इनको हम नाम दे देते हैं। Let the zeros be alpha and beta. Alpha and beta. Then alpha is equal to 1 and beta is equal to 3. Now we want to examine the relationship between these zeros and the coefficients. Coefficients क्या है वो भी लिख लेते हैं एक बार. We take on one more page and then we will do. How do we get the coefficients? We compare this polynomial. Comparing, what is our polynomial? It is 2x square minus 8x plus 6. So comparing 2x square minus 8x plus 6 with ax square plus bx plus c, we get a equal to 2. You have a look. Let us have a look. देखिए यहाँ पर x स्क्वायर के साथ 2 है, यहाँ पर a है, तो a की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह से b है x के साथ, कोफिशिएंट ऑफ x is b and here the coefficient of x is it 8? No, it's -8. Always remember to take the sign along with the number. तो -8 हो गया b और c
जो कांस्टेंट है यहाँ पर क्या है देखिए 6। तो अब हम इजीली तीनों कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू 6। ठीक है, और जीरोस तो हमने ले ही लिए थे, पीछे लिखे थे अल्फा इज इक्वल टू, देखिए आप 1 एंड बीटा इज 3। Now we want to find a relationship between these zeros alpha beta and these coefficients a, b and c। यही हम चाहते हैं। तो कैसे शुरुआत करें, दोनों zeros को एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा, what do we get? 1 into 3 it is equal to 3। और अब जरा यहाँ देखिए आप c और a को देखिए, क्या इनसे भी हमें कहीं से 6 और 2 से कहीं से 3 मिल पा रहा है? बिल्कुल मिल पा रहा है। हम इसको लिख सकते हैं 6/2। 6/2 भी तो 3 ही मिलेगा जो यहाँ प्रोडक्ट है, और इसको हम लिख सकते हैं c/a। तो अब आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। एक रिलेशन हमें दिख रहा है। एक और बात करते हैं, दोनों जीरोस को ऐड करते हैं, अल्फा और बीटा। लेट अस ऐड देम। इट इज 1 + 3 = 4। अब आप देखिए ये b और a, क्या इनसे हमें कहीं से 4 मिल सकता है? देखिए 8 and 2 डिवीजन से 4 मिल सकता है। एक बार डिवाइड करते हैं, -8/2 इट विल बी -4। 4 नहीं है अभी, तो एक माइनस और ले आते हैं। अब देखिए जरा, क्या ये 4 के इक्वल हो रहा है? 4 8/2 इट्स 4 एंड माइनस इट्स +4, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट -b/a। देखिए आप, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू है -8। b की वैल्यू -8, a 2, here c is 6 and a is 2। Now what do we see? We see that these coefficients are related to these zeros. Here we find the product of zeros and here we find the sum of zeros, and so we conclude that c/a is equal to product of zeros and -b/a is equal to sum of zeros. And what are these ABC? This a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि zeros और coefficients के बीच में ये relationships मिल रही हैं हमें। If we take a general polynomial, quadratic polynomial, which is given by p of x, ax² + bx + c, and if we take the zeros as alpha and beta, then what do we find is this p of x, ax² + bx + c, can be written as k into x minus alpha into x minus beta। अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। ये हमने 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी। इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली बीटा is again a zero of the polynomial, so x minus beta is also a factor of this polynomial where k is a constant, any non-zero real number. Now you can see here also in this example, just see alpha equal to 1 and beta equal to 3, these are the zeros of this polynomial, and you can see these factors also, x minus 1 और x minus 3 इसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो जहाँ पर जीरोस हमें मिल जाएं तो उनको x से माइनस कर देंगे तो वो लीनियर फैक्टर होगा इस दिए हुए पॉलिनोमियल का। तो इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पर कि अगर अल्फा बीटा दो जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? k मल्टीप्लाई द टू x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x। अल्फा को x से किया
और इधर से बीटा को x से किया तो माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, और फिर माइनस अल्फा को माइनस बीटा से करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा. यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई द नंबर्स गिवन इन 2 brackets. Now what we can write? This can be written as k x square minus, take this minus outside as common, alpha plus beta x plus alpha beta. ठीक है. और अब आप देखिए यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर हम दोनों तरफ अब अगर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, k को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा. अब यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स and constant on both sides, what do we get? You see, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर k है और यहाँ a है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट और ये x का कोफिशिएंट और ये c कांस्टेंट और ये c कांस्टेंट, इनको हम इक्वेट कर सकते हैं. दोनों तरफ इक्वल है पॉलिनोमियल्स ये, तो इनके कोफिशिएंट्स इक्वेट हो जाएंगे. a विल बी इक्वल टू k, देन वी गेट b इक्वल टू माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और फिर हमें मिलता है c इक्वल टू k अल्फा बीटा. देख रहे हैं आप. अब जरा इस सेंटर पे फोकस कीजिए. इस सेंटर पार्ट पे फोकस करते हैं. b अपॉन k करें और माइनस भी यहाँ ले आए तो हमें मिलेगा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. ठीक है. और इसी से हमें मिलेगा c अपॉन k इक्वल टू अल्फा बीटा. और k क्या है? k इज नथिंग बट a. देखिए यहाँ से. सो दिस मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू minus b upon a and c upon a, or I should write it in the reverse way. Alpha beta is equal to c upon a, and these are the results, the relationships that we were looking for. These are the important formulas and important relationships for any general quadratic polynomial. Sum of zeros is minus b by a and product of zeros is c upon a. Got it? Now we reach two very important results for a general quadratic polynomial p of x given by ax square plus bx plus c, where alpha and beta are the zeros. We can surely say that sum of zeros, which is given by alpha plus beta, it is equal to minus b upon a, which is again equal to minus coefficient of x. b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square, and product of zeros alpha beta, it is given by c upon a, which is c is constant term and a is the coefficient of x square. So this is the relationship between the zeros and the coefficients of a quadratic polynomial. Got it? Now we will discuss that how to find a polynomial if we have been given the zeros or the sum and product of zeros. We have the following two cases. We can find the polynomial by these two methods. Let us discuss it. If alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial, then the polynomial p of x, either it is given by k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. अभी हमने बात की थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखा था. ये देखिए k into alpha x square माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. ये देखिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया था, तो वही हम यहाँ लिख रहे हैं.
कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, और एल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस, और एल्फा बीटा की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेयर k इज अ कांस्टेंट, इट कैन बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर। तो ये मेजर फॉर्मूला है अगर हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ हो और पॉलिनोमियल निकालना हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास जहां हमें सम दिया हुआ होगा और प्रोडक्ट दिया हुआ होगा जीरो का, तब हमें उसका पॉलिनोमियल बताना है। तो ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आने वाला है, और हम इसी पॉलिनोमियल को एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, और वो क्या है, यूजिंग द रिलेशनशिप दिस वन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ये रिलेशनशिप्स यूज करके हम a की वैल्यू अज्यूम करते हुए b और c की वैल्यूज निकाल सकते हैं, और फिर हम इस फॉर्म में उसको रख सकते हैं, p ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो या तो इस फॉर्म में हम आंसर निकाल सकते हैं या फिर इस फॉर्म में। In both the cases we will find a multiple number of polynomials, infinitely many polynomials for the same set of zeros। अगर हमें दो zeros दिए हैं तो उन दो zeros के लिए ही हम बहुत सारे polynomials निकाल सकते हैं। यहाँ पर k की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, k की वैल्यू 1 लीजिए तो एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, k की वैल्यू 2 लेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, 3, 4 ऐसे कोई भी वैल्यू k की रखेंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे, पर सबके जीरोस वही होंगे अल्फा और बीटा जो हमें दिए हैं। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा, a की वैल्यू चेंज करते ही हमें दूसरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा, लेकिन जीरोस वही रहेंगे अल्फा और बीटा। ये कैसे पॉसिबल है, अभी हम ये एग्जाम्पल से समझते हैं। We have to find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are 10 and 21। तो हमें एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें सम ऑफ जीरोस दिया है 10 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 21। तो हम कैसे शुरू करते हैं, लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हमें निकालना है उस पॉलिनोमियल के जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। आपको ये बताना पड़ेगा कि जीरोस को हम अल्फा और बीटा से डिनोट कर रहे हैं। देन अल्फा प्लस बीटा इट इज गिवन इक्वल टू 10 एंड अल्फा इंटू बीटा इट इज गिवन इक्वल टू 21। अब हमें पॉलिनोमियल निकालना है तो हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल can be given as p of x equal to k into, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो काम आएगा, वो क्या था, k into x square माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros। I hope you have learnt this formula by this time and also understood it। ठीक है, इसमें रिप्लेस कर लेते हैं k into x square minus what is sum of zeros, it is 10, so 10x plus 21। This is the required polynomial, and if we now take the value of k, for simplicity we usually take the value of k equal to 1, and so taking k equal to 1 we get the polynomial p of x equal to x square minus 10x plus 21। ठीक है, इसी तरह से हम इसे दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, एक स्लाइड और लेते हैं और फिर हम करेंगे। We have been given alpha plus beta equal to 10 and alpha beta equal to 21। अब हमें पता है alpha plus beta, this is the second method, okay? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, और ये हो गया इक्वल टू 10, और अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और ये हो गया 21। अब यहाँ पर आप देखेंगे दो इक्वेशन है और वेरिएबल्स तीन हैं, ए बी और सी। तीन वेरिएबल्स हैं, तीनों की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन दो है।
अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो तीनों की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास 3 इक्वेशंस हो, पर क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही इक्वेशंस हैं तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से माननी होगी और बाकी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू अपने मन से लेंगे। लेट अस टेक a इक्वल टू 1। 1 लेने से क्या आ जाएगा, यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी -10। दिस विल इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू -10। आप देखिए a की जगह 1 रिप्लेस करिए और माइनस उधर चला जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा तो -10, और a की जगह 1 रखने से c आ जाएगा 21। और अब हमारा पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c, यही फॉर्म है। और अब a की जगह तो 1, नो नीड टू राइट इट, -10, b की जगह हमने लिख दिया -10x प्लस c की जगह आ गया 21। और आप देखिए ये सिमिलर है इस पॉलिनोमियल के जो हमने इस फॉर्मूले से निकाला था। तो ये अब आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इस फॉर्मूले से कर लीजिए या आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू, ये सॉल्यूशन तो यहीं तक हो गया, लेकिन अगर इस डिस्कशन को बढ़ाएं और a की वैल्यू एक बार 2 लेकर चलते हैं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ देखिए -b/2 = 10 हो जाएगा। यहाँ से बात कर रही हूँ, -b/2 = 10, और इससे b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -20, और यहाँ से c/2 = 21 हो जाएगा और c की वैल्यू हो जाएगी 42। और अब आपका पॉलिनोमियल किस फॉर्म का हो जाएगा, इट इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c, याद रखिए। और a की जगह क्या आ जाएगा, 2x², b की जगह आ जाएगा -20x और c की जगह आ जाएगा 42। ये हो गया नया पॉलिनोमियल विद दीज कोफिशिएंट्स a, b एंड c। और आप देखिए इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा x² - 10x + 21। अगेन यही वाला पॉलिनोमियल आ गया सेंटर में। और अब अगर हमें इसके जीरोस निकालने हो तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। हमने बात की थी कि किसी भी पॉलिनोमियल के अगर जीरोस फाइंड आउट करने हो तो हम उसे इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो इसको अगर हम इक्वल टू 0 करें तो ये 2 जो है इधर ट्रांसपोज होने पे एलिमिनेट ही हो जाएगा, 0/2 एंड 0/2 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए चाहे यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, हमारे पास सेम पॉलिनोमियल बचेगा और इसके जीरोस वही सेम आएंगे। अगर हम इसके फैक्टर्स करें आपको मिलेगा x - 7 x - 3 = 0, और आपके जीरोज हो जाएंगे 7 और 3। x - 7 को अगर हम इक्वल टू 0 करें तो 7, और x - 3 को इक्वल टू 0 करें तो x = 3। तो ये हमारे 2 जीरोज हो गए, अल्फा हो गया 7 और बीटा हो गया 3। तो अब आप देखिए यही जीरोज इस पॉलिनोमियल के लिए भी थे और यही जीरोज इस पॉलिनोमियल के लिए भी हैं, ये जो 2 से मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, इन दोनों के जीरोज, इस पॉलिनोमियल के जीरोस और इस पॉलिनोमियल के जीरोस। यहाँ से बात करें इस वाले पॉलिनोमियल के, इन दोनों के जीरोस सेम आ रहे हैं 7 और 3। भले ही यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 3 से मल्टीप्लाई हो रहा हो या 4 से हो रहा हो, इन एवरी केस इट विल बी एलिमिनेटेड व्हेन वी विल इक्वेट इट टू 0। जब भी हम जीरोस निकालेंगे तो ये तो 0 की मदद से एलिमिनेट हो जाएगा और एंड में वही का वही पॉलिनोमियल बचेगा, वही जीरोस हमें मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर हमारे पास एक सेट ऑफ जीरोस हैं तो उन एक सेट ऑफ जीरोस से हम बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं और उन सब का सेट ऑफ 0 वही 2 नंबर्स रहेंगे जैसे कि इस एग्जाम्पल में है। इसी तरह से जब हमने इस फॉर्म में आंसर निकाला था तो यहाँ पर k की वैल्यू, आप कोई भी k की वैल्यू ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम फॉर्म बन जाएगा, देखिए यही वाला फॉर्म, सेम रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ना, आप देखिए कनेक्ट करिए।
तो यहाँ पर k की कोई भी वैल्यू लें, आपको मल्टीपल या मेनी, इनफाइनाइटली मेनी पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे जिनके जीरोस तो सेम होंगे लेकिन पॉलिनोमियल्स अलग अलग होंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? तो अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब सम और प्रोडक्ट दिया हो, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। इस फॉर्मूले से भी पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं और आप इस टेक्निक से भी पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से हम ये चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। This is an example from your book. What is it? Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो पहले तो हमें इसके zeros find out करने हैं। दो काम करने हैं हमें। पहला find the zeros, पहला काम ये, और second verify the relationship। ये दो काम करने हैं। तो पहले पहला काम करते हैं, zeros find out करते हैं। उसके लिए हमें इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने होंगे। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके फैक्टर्स। अब क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो हम डायरेक्टली भी इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। आप देखिए 10 के फैक्टर्स करने होंगे, 2 5 10 और सम भी 2 + 5 इट्स 7, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं x + 2 इंटू x + 5। इन केस आप डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे हैं तो एक बार हम वैसे भी कर लेते हैं। 10 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 5 और 10 इंटू 1, और क्लियरली इन दोनों का सम आ रहा है इक्वल टू 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह हम लिख सकते हैं 2 + 5 x + 10। इसके बाद मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया है हमने, यहाँ पर ब्रैकेट खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। यहाँ पर ये 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 5 को x के साथ। दिस इज द सिंबल प्लस। नेक्स्ट वी विल टेक द कॉमन आउटसाइड। फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में x बाहर है, एक बाहर एक अंदर, x बाहर 2 अंदर। फिर यहाँ पर आप देखिए 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 भी और 10 भी, तो बाहर आ गया x + 5 2 = 10। ठीक है, x + 2 इज अगेन कॉमन, इसको बाहर ले लेंगे और x + 5। देखिए आप, वही आंसर आया है, हमने डायरेक्टली भी लिख लिया था। तो आप इस केस में जहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, आप डायरेक्टली भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट? वी हैव टू फाइंड इट्स जीरोस, और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? इक्वेट इट टू 0। सो वी राइट इट हियर। टू फाइंड द जीरोस, we take x square plus 7x plus 10 equal to 0, और इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, x + 2 x + 5 equal to 0। अब either x + 2 is equal to 0, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब दोनों में से कोई एक 0 हो। तो या तो x + 2 equal to 0 है और x + 5 equal to 0। अगर x + 2 equal to 0 है तो x equal to -2 और x equal to -5, and these are the two zeros which were required for this polynomial, and we can give them the name alpha and beta। ठीक है, let the zeros be alpha and beta। तो अल्फा की वैल्यू आपकी हो गई -2 और बीटा की वैल्यू हो गई -5। तो इस तरह से हमने पहला काम तो कर दिया है, और वो पहला काम क्या था? फाइंड द जीरोस। देखिए फाइंड द जीरोस, और वो हमने निकाल ली हैं जीरोस। अब नेक्स्ट काम हम करेंगे, वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स की जरूरत पड़ेगी अब हमें। तो उसके लिए वी टेक
we compare the polynomial with a standard or general quadratic polynomial. Okay, comparing x square plus 7x plus 10 with ax square plus bx plus c, we get, what do we get? a equal to how much? यहाँ पर a x square का कोफिशिएंट है और यहाँ कोई नंबर विजिबल नहीं है, दैट मीन्स इट्स 1 into x square. Then b is equal to, b is the coefficient of x and here we have 7, coefficient of x is 7 and c is equal to the constant here and it is here 10. अब हमें a b c भी मिल गया, अल्फा और बीटा भी मिल गया. एक बार उनको फिर से लिख लेते हैं. अल्फा is equal to, just have a look, -2 and beta is -5. -2, beta is -5. Now we will verify the relationship between these coefficients and the zeros. So first one, okay, what we find? Sum of zeros, alpha plus beta. दोनों को sum करिए, -2 plus -5. This is equal to -2 plus minus is -5. This is equal to -7. ठीक है. और अब हम -b/a भी निकाल कर देखते हैं. -b/a कितना है देखिए, -b की जगह आ जाएगा 7 और a की जगह आएगा 1 और -7/1 इज -7. तो अब आप देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं. और इसलिए वेरीफाई होता है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू -b/a. और इफ वी राइट इट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो इस तरह से हमने पहला रिलेशन तो वेरीफाई कर लिया है. अब एक और रिलेशन रहता है, उसको भी हम लिख लेते हैं. वी टेक वन मोर पेज. दीज आर लेंदी क्वेश्चंस. सेकंड वन, उसके लिए हम प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा और बीटा का. रिमेंबर अल्फा वाज -2 एंड बीटा इज -5. इफ यू विल मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, 2 5s are 10. ठीक है. और अब c/a भी निकालते हैं. देखिए यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, 10 और a की वैल्यू है 1. तो 10/1 इट इज इक्वल टू 10. देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर फिर से वेरीफाई होता है. Hence, alpha into beta, that is the product of zeros, it is equal to c/a, or we can write in words as constant term upon the coefficient of x square. In this way, we have verified the relationship also. Okay. This was your example 2. Now we take on example 3. Find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Again, we have to do two works. First is find the zeros and second verify the relationship. Okay, let us take this polynomial as p of x. Let us give it a name. Let p of x equal to x square minus 3. अब आप देखिए यहाँ पर x वाली टर्म तो मिसिंग है. b जिसका कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट ऑफ x इट इज b, वो टर्म यहाँ पर मिसिंग है. तो अब हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं और फिर हम इसके जीरोस निकाल सकते हैं, या एक बार डायरेक्टली भी करते हैं. जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं जीरो के लिए, जीरो को. तो हम लिखेंगे टू फाइंड जीरोस we take p of x equal to 0. This means x square minus 3 it is equal to 0. अब x square को यहीं लिखते हैं और 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो x square is equal to 3. अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं. तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर हट के x बचेगा और इधर से हमें 3 का स्क्वायर रूट लेना होगा. सो
what we write? X equal to square root 3, but in this case we take plus value also and minus value also. कैसे? आप देखिए, प्लस रूट 3 इंटू प्लस रूट 3 करेंगे, अगर आप दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई करने से 3 मिलेगा हमें, तो 3 का स्क्वायर रूट हो गया रूट 3। और अगर हम माइनस रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 भी करें तब भी तो हमें 3 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, एंड रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, तो बोथ केस वी विल गेट 3। तो इसलिए 3 का स्क्वायर रूट प्लस रूट 3 भी होगा और माइनस रूट 3 भी होगा। और दूसरी तरह से भी आप सोचिए कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो इसके 2 zeros पॉसिबल है, एट मोस्ट इट विल हैव 2 zeros। तो 2 zeros, फर्स्ट जीरो इज प्लस रूट 3 एंड द अदर वन इज माइनस रूट 3। तो अगर हम जीरोस को अल्फा और बीटा नाम देते हैं, लेट द जीरोस बी, इसको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा ताकि स्पेस बन जाए, अल्फा एंड बीटा, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3। आप चाहें तो इसका फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। किस तरह से? वी कैन टेक इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपकी आइडेंटिटी है, थर्ड आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, तो उससे ये ब्रेकअप हो जाएगा x प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 और x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। अब इससे यू विल गेट x इक्वल टू माइनस रूट 3 और x इक्वल टू plus root 3. In this way also you can factorize this polynomial. a square minus b square फॉर्म में आ गया ये, a plus b a minus b, इसके हमने फैक्टर्स कर दिए और फिर आप देखेंगे कि इससे x की दो वैल्यूज आ गई, माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3, जो हमें इस केस में भी मिल गई थी, प्लस रूट 3 एंड माइनस रूट 3। सो वी हैव found the zeros of this polynomial. First one is root 3 and the other one is minus root 3. अब हमारा क्या काम रह गया है? We have to verify the relationship. For this we take on one more page. Again we will have to find the coefficients a, b and c. So comparing x square minus 3 with a general quadratic polynomial ax square plus bx plus c, इससे हम अगर कंपेयर करें तो आप देखेंगे a is what? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है यानी 1, तो a is 1। देन b, you will see that b is the coefficient of x, और यहाँ पर तो x की टर्म ही नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो गई? 0। सो b is 0 एंड c इज द कांस्टेंट टर्म, और यहाँ आप देखेंगे कांस्टेंट क्या है? -3, टेक द साइन माइनस ऑल्सो, -3, एंड वी हैव अल्फा इक्वल टू रूट 3 एंड बीटा इक्वल टू माइनस रूट 3। अब हम इनकी रिलेशनशिप जो है इनमें जीरोस और कोफिशिएंट्स में उसको वेरीफाई करेंगे। पहला रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा लेंगे हम, और अल्फा है रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 बीटा के लिए, इट इज़ नथिंग बट रूट 3 माइनस रूट 3, प्लस माइनस इट विल बी माइनस एंड इट इज़ इक्वल टू 0। रूट 3 माइनस रूट 3 ये तो 0 ही होगा। और अब हम देखते हैं माइनस बी अपॉन ए से क्या मिलता है? माइनस बी, बी इज़ नथिंग बट 0 और a की वैल्यू क्या है? 1, तो ये तो 0 ही हुआ ना, 0 में आप किसी से भी डिवाइड करेंगे आंसर तो 0 ही आएगा, और -0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स स्ट्रेट अवे 0। अब हम यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखिए दोनों ही 0 आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल हो गए, और ये क्या है? माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x
which is 0 here upon coefficient of x square. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और अब हम सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लेते हैं. सेकेंड रिलेशनशिप में हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा √3 इंटू -√3. तो ये प्रोडक्ट करेंगे माइनस आएगा और √3 इंटू √3 वी नो इट इज इक्वल टू 3. √3 स्क्वायर इज 3 इटसेल्फ. और अब c अपॉन ए भी लिख कर देखते हैं. व्हाट इज c? इट इज -3. देखिए आप, तो -3 अपॉन a इज 1 अपॉन 1, तो ये हो गया -3. देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं. एंड सो हेंस अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू c अपॉन a. और c क्या है? कांस्टेंट टर्म. और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x square. Got it? This was example number 3. Next we have example number 4. Find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2. Now here we have been given the sum and product of zeros and we have to find the polynomial. तो पहले हम zeros को कुछ नाम दे देते हैं. We write the solution. Let the zeros of the polynomial be alpha and beta. ठीक है. Then we have been given that alpha plus beta, their sum is equal to -3. You can see the sum is -3 and their product alpha into beta it is given equal to 2 from here. ठीक है. तो अब हमें वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस का सम -3 है और प्रोडक्ट 2 है. सो वी राइट डाउन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. वी हैव वन फॉर्मूला फॉर दिस. जस्ट रिकॉल इट so that we can find this polynomial. The required polynomial p of x, it is given by k into x square minus sum of zeros alpha plus beta into x plus product of zeros. We have this formula. याद आया आपको? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस पर डिस्कशन किया था. So we have this formula. Now simply we need to put in these values. This is equal to k into x square minus, what is the value of alpha plus beta? It is -3. You can see here -3x plus it is 2 alpha beta. This is equal to k into x square plus 3x minus plus 2. Now for simplicity we take the value of k as 1 because it's always easy. Then so let us take the value of k as 1, taking k equal to 1, p of x is equal to x square plus 3x plus 2, and this is the required polynomial. So today we discussed about the relationship between zeros and coefficients in case of a linear polynomial as well as in case of a quadratic polynomial. I hope it is clear to you, and in our next class we will be taking up a cubic polynomial. Till then, goodbye.